Hi, good evening, everyone. Hi, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Can you hear me properly? Yes. Yes, sir. So let's wait for a more 2 minutes. 1 minute we have left right now. So then we start the class. Okay, let's begin the class. So I'm sharing my screen. I hope my screen is visible to you, everyone, right? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, your screen is Yes. visible to us. Yes, sir. Wait. So now you can hear me, right? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, we can hear पहले you. वो थोड़ा दो स्क्रीन था, so that's why कि मेरे को एक switch करना पड़ा. So now we are on Excel right now. So today we are covering a VLOOKUP. Okay. So VLOOKUP को हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि कैसे यूज होता है. So now you can see that कि what is VLOOKUP. VLOOKUP का definition क्या होता है? Let me tell you on what does it do and how it does it. Okay. So basically the functions look piece of information in the list and then pick an item. So basically क्या है कि right now you can I have data here. Okay. I have a data here. Sir, your voice is breaking. Why is it not getting clear, sir? My voice is breaking. Yes. Yes, sir. Just give me a second. Let me check. So now you are getting my voice clearly, right? Yes, now the is clear. Yes, now it's clear. Okay. Okay, fine. So now in this data you can see that I have a data here. Let me see who is joining. Okay, Amit Vyas. Now we have a data here. So this is very simple data.
Now in this data, you can see that I have a name column, I have a January here. Right? Again, it will be your voice. There. मेरी वॉइस फिर डिस्टर्ब हो रही है? Yes. Yes, sir. ब्रेक हो रहा है। मतलब आई ऐसे थिंक एक कोई नेटवर्क इशू रहा होगा। Can you hear me? Yes. Okay. अभी वॉइस सही है? No, sir. अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरी वॉइस में? सर बीच बीच में कट जाती है आपकी वॉइस। Okay. I'm switching to the my. Okay, this is my connected with the my. Let me connect with my Wi-Fi. So guys, now you are getting my voice clearly, right? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. So now I'm Yes, connected. yes, no voice is there. Yes, sir. Okay, fine. So now we have a data here. So let's quickly start with the data understanding first. So now we have a column here, name column. Now we have a Jan, Feb, and March, right? So I have a simple data here. Now what I'm trying to find, so I have a type name here. I just type here a Eric, right? So I want to find the Eric. The question is that to find the Feb value for the person, Eric. तो एरिक का जो फेब में वैल्यू है वो मेरे को फाइंड करना है। तो फेब में वैल्यू क्या दिखा रहा है एरिक का? 120, राइट? कैन यू सी दैट? 120 दिखा रहा है एरिक का Yes. फेब में। तो हमारे पास क्या है? एक लुकअप का फॉर्मूला है। So the function, what does it do? The function looks for a piece of information in a list and then picks an item from a second range of a cell. So this works from your start from this column. For example, I'm just finding the Eric value. So I should like my data should be in left side. मेरा लेफ्ट साइड में होना जरूरी है। और आप हमेशा जब वैल्यू निकालेंगे एरिक का, चाहे वो जनवरी का हो, चाहे फरवरी का हो, चाहे मार्च का हो, वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं चलता वी लुकअप। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay, so now the what is the syntax? So syntax is that you have to type lookup. How to write the lookup? So let me tell you. So how to write? So we have a lookup. You can see that I have a lookup formula. So you can see that this is the lookup value. So lookup value हम किसका देख रहे हैं? Lookup value हम देख रहे हैं इस Name. Eric का, right? Eric. Yes. So look up a value either from one row or one column range from an array provided by. So this is the description. So I'm not going to description. Just understand कि lookup में हमें सबसे पहले क्या देखना था? lookup value. Syntax understand करते हैं. So syntax is that कि lookup value में first one is Eric. So I have to select the Eric, right? And where I have to find the lookup vector. So lookup is that I have to find it from the database, right? All tables. So my database is that I have to just select entire data. You can select the entire data, right? Okay. Or you have to just remember that कि आप कौन सा column select कर रहे हो, right?
So you can see that ki I am selecting the data from range. I have how many columns right now? I have 1, 2, 3, and 4. Right? How many columns? I have a 4 Four. columns. Right? तो हमें कौन से कॉलम से उठाना है? फेब वाले कॉलम से उठाना है. So you have to remember that कि ये कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है. So now I have already selected entire range. अगर आपको जहां तक सिलेक्ट करना है तो आप वहां तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो है कहां तक रेंज आ रहा है. यू कैन सी दैट कि मेरा रेंज 3rd है. Range stopped, sir. Oh. ये सारे निकल गए हैं मीटिंग से, ट्रेन चली गई। हेलो, हेलो देवराज सर। यस यस, क्या हुआ, क्लास हाँ चल सर, रही थी? हाँ शिवानंद सर ही एक्चुअली मीटिंग से निकल गए। सर विष्णु अपने आप रिमूव हो गए सर। अच्छा अच्छा, आई थिंक वो सेम आईडी यूज कर रहे थे क्या? सेम आईडी से शेयर हो सर, आपकी आईडी से। अच्छा अच्छा, रुक जा, मैं बोलता हूँ ज्वाइन करने को। अरे क्या हो गया यार। हेलो, हाँ ज्वाइन कर रहे हैं सर, थोड़ा सा वेट करिए। आप लोगों को रिकॉर्डिंग, कुछ लोगों को नहीं मिली थी, रिकॉर्डिंग मिल गई? सर रिकॉर्डिंग कहाँ से अवेलेबल होगी? मुझे एक्चुअली वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ से हो रहा है वो। अच्छा अभिषेक, नहीं मिली सर रिकॉर्डिंग। ओके, एक मिनट दो, मैं देखता हूँ। 24 तारीख के बाद अपलोड भी नहीं है शायद के 25 तारीख। नहीं, लेक्चर हो गए हैं, आज नहीं था। पर जिसको एक्सेस दिया गया होगा शायद उसको ही दिख रहा हो। ऐसे तो मेरे अभिषेक, पास आपने साइन अप किया है? हाँ सर, मैंने साइन अप किया है सर। सर मुझे भी नहीं मिला है। अभिषेक, आपकी आईडी नहीं आ रही, क्या है यूजर आईडी, क्या है यूजर, मतलब आपकी ईमेल आईडी क्या है, एक बार अभी रिशु ठाकुर हाँ रिशु ठाकुर 0938। रिशु ठाकुर, ओके। आपकी अभिषेक के नाम से सर्च कर रहे थे, मिला नहीं इस वजह से। अच्छा हाँ, ऋषि ठाकुर 0938। और किसको एक्सेस नहीं मिला है? अभिषेक, आप चेक सर कर लीजिए। मुझे नहीं मिली। प्रियांश, यस सर। राकेश, सही शेडी। प्रियांश को हो गया, और किसको एक्सेस नहीं मिला है? राकेश, राकेश, राकेश 8010। यस। वन सेकेंड, हाँ आपको तो एक्सेस मिला हुआ है पहले से ही। लेकिन सर मेरे पास सही शेडी। हाँ राकेश, आपको एक्सेस मिला हुआ है? अटेंडेंस का एक्सेस है सर, बाकी का तो नहीं अभी मैं मिला। बता रहा हूँ, रिशु ठाकुर को भी मिला हुआ है एक्सेस।
ठीक है, ऋषि ठाकुर आपको 2 बार एक्सेस मिल गया है, एक डिलीट कर देता हूँ। और किसको ये एक्सेस मिला है? साई शेडी। एक बार ईमेल आईडी बताइए। SR शेडी, SAISHEDI SAI, ओके। SHEDI 099। गॉट इट। ओके, आपको भी एक्सेस दे दिया गया है। ओके सर, ठीक है, शुक्रिया। चल, एक बार आप लोग एक्सेस चेक कर लेना, अगर LMS एक्सेस करने में कोई दिक्कत आती है तो बताना, ठीक है? ठीक है guys, one more announcement is like this batch is going to continue till Friday, okay? अगर आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो then you will have to take the enrollment, okay? Okay, yes. Okay guys, I'm back. There is just some glitch. सर्टिफिकेट कब मिल जाएगा सर? क्या चीज मेरे से पूछ रहे हो क्या? यस सर, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेशंस वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। दे विल प्रोवाइड यू, ओके? ओके सो सर, शैल वी शुक्रिया। स्टार्ट? हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, सो आई हैव टू गो विथ, थोड़ा सा हम धीरे धीरे चलेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ओके? सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास डेटा था, और डेटा में हमें एक का डेटा निकालना था कि वैल्यू कितना है फेब, राइट? ये हमारा क्वेश्चन था, ओके? सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना था, वी लुकअप, ओके? रिटर्न द फर्स्ट सर्च रिजल्ट इन द वेरियस वर्टिकल लिस्ट। So now you can see that I have a lookup of value, table array, column index number and range lookup. So यहाँ पे हमको क्या डिफाइन करना है? पहले तो आपको array का वैल्यू फाइंड करना है फैब में से, राइट? तो फैब में से हम पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट एंटायर डेटा और यू कैन सेलेक्ट द फैब तक डेटा, जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां तक सिलेक्ट कर। और आपको कॉलम याद होना चाहिए, मतलब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 कॉलम है, राइट? ओके, सो नाउ ऑलरेडी आई एम सिलेक्टेड हियर। और फैब कौन से कॉलम में था? थर्ड वाले कॉलम इंडेक्स में था। और ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। सो आप ट्रू क्या हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट मैच निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट मैच भी डाल सकते हो। Now hit enter. So what is the value for Eric is 120, right? आंसर यही है हम लोग का, 120 आंसर है। Yes. So we lookup में हमेशा मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए छोटा सा डेटा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल आई हैव दी दिस इज द डेटा हियर। Now, what exactly I am trying to find it here? I'm just trying to find it here कि type the name Carol. Carol का नाम हमने यहाँ पे टाइप किया, okay? Now, I want to find the value. Can we see any value here? कोई वैल्यू दिख रहा है हमें यहाँ पे? यहाँ का वैल्यू मेरे ख्याल से लग रहा है कहीं पे और चला गया है, राइट? सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डेटा इधर से उधर है, ये गलत है। हम इसको एक काम करते हैं, इसी डेटा को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस के लिए शीट उठाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, राइट? सो आई एम जस्ट पेस्टिंग हियर, ओके? सो नाउ हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मेरे पास डेटा एडजस्टमेंट के लिए है। आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में देव ने बताया होगा, या ऑल्ट OCA भी कर सकते हैं, राइट? आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। नाउ I want to put the border here, so just select HBA
ऑल्ट HBA करके आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। लेट मी जस्ट टाइप हियर टोटल। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल आ गया। टोटल करने का तरीका क्या है, मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट एंड इक्वल्स टू, दिस इज माय शॉर्टकट फंक्शन टू सम दैट, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया है, आई डोंट नो, बट ऑल्ट और इक्वल्स टू एक शॉर्टकट फंक्शन होता है जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने जो रोज में या कॉलम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर ऑटोमेटिकली लगाना चाहता हूँ, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस ऑल्ट एंड इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और मैं इसको इस पे यहाँ पे कंट्रोल R करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल R प्रेस किया, तो जो सेम फॉर्मूला था उस द सेम फॉर्मूला विल अप्लाई फॉर द नेक्स्ट कॉलम, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नाउ लेट मी जस्ट हिट हियर एंड हियर यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर वाटर लगा दिया है। दिस इज शोइंग वेरी good. Now what here I'm just trying to here let me just border it out here. Just give me a second. Okay. So now you can see that I have a data here. My question is that simple, very simple for you everyone. कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू ट्रांसपोज दिस डेटा, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी का डेटा यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास है एलन, ओके, मेरे पास है कैरोल, राइट। नाउ हियर आई एम जस्ट पुटिंग हियर कैरोल नेम, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेंचिस एंड एरिक, और फिर मैं डाल देता हूँ बॉब, ओके। दिस इज माय डेटा। सो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ जनवरी। सो यहाँ पे मैं कॉलम का डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड कॉलम, दिस इज माय थर्ड कॉलम, दिस इज माय फोर्थ कॉलम, दिस इज माय फिफ्थ कॉलम, राइट। ये हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर है, ओके। क्लियर है सबको? यस। नाउ मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि मुझे यहाँ पे मार्च का डेटा निकालना है। इज दैट पॉसिबल कि आप एक एक करके डाल सकते हो? 9 एक एक करके हम डाल सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये छोटा डेटा है बट हम डाल सकते हैं, बट अगर ये बड़ा डेटा होता तो क्या यू कैन यू एबल टू फाइंड दैट डेटा? नो सर। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें नॉट पॉसिबल की मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। एलन जो है, एलन के सामने आप देखो मार्च में 97 है, राइट। अब मेरे पास कैरोल आ रहा है, कैरोल में मैं जाऊंगा 1 2 3, कैरोल में क्या है 45। फ्रांसिस कहाँ आ रहा है? यहाँ पे लास्ट में। तो मैं एक एक करके डालना मुश्किल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, वी लुकअप। वी लुकअप क्या करेगा, looks for a value in the leftmost column of a table and then return a value, okay. So जो leftmost में आपका जो यहाँ पे है, इसका वैल्यू लुक करेगा कहाँ से, whatever you defining the arrays और डेटा, वहां से आपको डिफाइन करके ये देगा, okay. So first let's look up the value. Lookup value is ln, okay, and table array is this one. तो आप जहाँ मार्च का डेटा है तो मार्च तक सिलेक्ट करो, अगर आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो तो दैट इज गुड। क्यों मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। ये मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। नाउ इफ आई पुट हियर कॉमा, उसके बाद मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा? एनीवन? व्हिच वन आएगा? फोर्थ, राइट। एंड देन उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, आप दोनों यूज कर सकते हो, बट मैं जो यूज करता हूँ एग्जैक्ट फाइंड करना चाहता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करना चाहता, बट वैल्यू आपको दोनों में सेम ही देगा। मैं फॉल्स यूज करता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ,
So what is the answer for ln is 97. That is correct. Now drag this formula, just go to here and just drag it. तो मेरे पास ये देखो, ये ऑटोमेटिकली जो मैंने रेंज डिफाइन किया था वो डेटा ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। तो मैं क्या लेफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट किया नीचे तो क्या बदला, क्या मुझे करना चाहिए था इसके अंदर? फ्रीज change- करना चाहिए था। राइट, वी हैव टू फ्रीज द एरे, मतलब हमें फ्रीज करना था टेबल, राइट। तो फ्रीज करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? F4। ओके, हम क्या प्रेस करेंगे? F4 जैसे ही प्रेस करेंगे वो फ्रीज हो जाएगा। अब हिट एंटर करते हैं और इसको फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट नीचे यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला जो होगा सिंपल यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। राइट, सिंपल है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे फेब लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फेब डाला, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे फेब का डेटा निकाला, तो मैं सेम इसको फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हो आप, करना चाहो तो। और आपको क्या मेंशन करना है सिर्फ इसके अंदर? 4 की जगह 3 लिखना है सर। 4 की जगह 3 लिखना है। क्यों? क्योंकि थर्ड जो है हमारा फेब कॉलम है। दैट्स इट, ठीक है। बस इतना सही करना था और हम ड्रैग कर देंगे इस फॉर्मूले को और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर जनवरी लिख दूं तो डेटा चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। अब ये मेरे को डेटा चेंज करने का है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा हमारे पास कि हम सेलेक्ट करें डेटा और ऑटोमेटिकली मूव होता जाए डेटा। इसी बातें होगा हमारे पास डेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, राइट। हाँ, यस और नो? यस, डेटा तो होगा। डेटा होगा, होना भी चाहिए। हम क्यों बार बार लिखें यहाँ पे? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, राइट। राइट, तो ये डेटा एडवांस फंक्शन में आता है, उसके लिए हमें फाइंड, इफ, इंडेक्स, मैच बहुत चीजें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी नेक्स्ट फेज में आएगा, क्योंकि वो हमारे एडवांस लेवल के फंक्शंस हैं। पहले हमें बेसिक्स आइडिया चल जाए कि हम VLOOKUP कैसे यूज करते हैं। तो हमने दो चीजें हमने यहाँ पे ये सीखा कि VLOOKUP कैसे काम करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तो चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं सेम डेटा उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे एक पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे एक कॉलम, कंट्रोल प्लस से कंट्रोल प्लस से आपका जो है कॉलम यहाँ पे। सो कंट्रोल प्लस से मेरा क्या होगा? सेम आपका जो फॉर्मेटिंग था वो वैसे का वैसे ही हो जाए, ठीक है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नाउ आई Yes, हैव sir. जनवरी, फरवरी, मार्च और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक अगस्त तक डेटा आ गया, राइट। मैं और भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कॉलम डाल देता हूँ, तो मैं एक हिट करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल प्लस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। So now let's drag this one from here to here. So you can see that कि I have a data here, right? अब मैं आप लोगों को एक नेस्टेड इफ, शायद नेस्टेड VLOOKUP के बारे में किसी ने सुना है कि नहीं सुना है, आई डोंट नो, बट एक ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा कि शायद ही आप लोग इसको देखो और यूज कर सको, तो यूज करो क्योंकि दैट इज बेटर। अब मेरे पास कॉलम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। नाउ आई हैव अ कॉलम रोज हियर आल्सो। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, आप समझ सको। कॉलम इंडेक्स नंबर कई लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। जब भी आप ट्रैक करते हैं तो आपको हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे रेंज नंबर दिखाते हैं, जैसे A और 2 है, मींस दैट कि आप
कितना रोज और कितना कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, वो सारा चीज है। ओके, सो नाउ आई हैव अ डेटा हियर। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा फिल कर देते हैं नंबर से। सो नाउ आई हैव द नंबर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर्स आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पे नाम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास कुछ नाम यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, बॉब, एरिक, गेल। ठीक है, मैं जंबल वर्ड उठा लेता हूँ ऊपर से नीचे, ताकि हमें डेटा थोड़ा सा ढूंढने में ऐसा ना हो कि इजी लगे। ठीक है, इस तरीके से रैंडमली किसी ने मेरे को डेटा दिया कि आई नीड द वैल्यू फॉर मार्च, फॉर मई, ठीक है, फॉर जनवरी, फॉर सितंबर, फॉर नवंबर, एंड फॉर दिसंबर, सॉरी, फॉर जुलाई। नाउ लेट्स ऐड हियर कि मैं कॉलम का नंबर दे देता हूँ। इधर कौन सा मार्च है अपना, कॉलम नंबर 4, और मई कौन सा है, 6. मई कौन सी कॉलम में है, 6, और जनवरी 2, Second. राइट। सो लेट मी जस्ट सेंटर इट आउट सो यू कैन फाइंड आउट कि हमारे कौन से कॉलम है। और सितंबर कौन से कॉलम में है, 10 10 10. 10 में है, ओके 10। और नवंबर नवंबर कौन से 12 कॉलम में है, 12। जुलाई जुलाई 8 8. 8 और 7, 8 8, सॉरी। सो नाउ दिस इज 8। अब मैं क्या एक एक करके, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि मेरे को एक एक करके यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा था, राइट। मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे चेंज कर रहा था, 3, 4, 5 ऐसे करके मैं डाल रहा था, राइट। अब मुझे एक एक करके नहीं डालना है, मुझे एक साथ चाहिए। एक साथ पॉसिबल कैसे होगा, Any idea? लगेगा इक्वल टू इज इक्वल टू, ओके ठीक है, मैं शुरू करूं कैसे, मतलब शुरू कर दूं पहले सेल से, इज इक्वल टू वी लुकअप, हाँ बी लुकअप, ओके और ये एरे नेम एरे बॉब, ओके डन, गुड। और अपना मार्च चाहिए तो मार्च को हम लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सेल ले लूं, पूरा डेटा ले लूं, कोई हाँ प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ पूरा, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं इसको फ्रीज कर दूं, प्लीज अभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोमा देना के, कोमा एक दे दीजिए। आप फ्रीज दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीज मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, कोमा। ओके, आपको जनवरी मंथ का चाहिए तो मेरे को 3, मार्च मंथ चाहिए तो 4 मार्च है, का चाहिए तो 4, तो 4 कोमा, मैंने डिफाइन कर दिया, फिर कोमा। कॉमा, उसके बाद चाहिए हमें, कौन सा मैं मंथ दिख नहीं रहा, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स। इस बार चलो ट्रू करके देखते हैं, ओके, एंटर करूं तो कितना आंसर आया मेरे पास, 69। सो 69। बॉब का मार्च में कितना है, 69। अब मेरे को मई का निकालना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को एक साथ चाहिए, मेरे को बार बार क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा मई का निकालना होगा तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, इसको कॉपी करूंगा हम्म, और इसको यहाँ पे क्या करूंगा, 6 लिखना पड़ेगा, राइट। हाँ। बट मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, तो उसी फॉर्मूले में कोमा के बाद में हम वो मंथ वो जो भी यहाँ अपना, पे या हाँ वहाँ पे कोमा, कॉमा, नेक्स्ट मंथ कौन सा मई है 6, ना, मई के 6, ओके और जनवरी के लिए 2, सॉरी 2, 2, कोमा ठीक है, 10, 10, और उसके बाद आई थिंक 8 है, दिख नहीं रहा। अब दिखेगा, हाँ 10, 12 और 12 8 और 8, एंड 8। ये काम करेगा। चलो मैं हिट एंटर कर रहा हूँ, अब मैं ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ, राइट। एग्जैक्ट मैच निकालना है हमें, हाँ। तो फॉल्स कर देता हूँ। सो लेट्स सी, आपका नाम क्या है सर, राकेश। राकेश जी, देखते हैं काम करता है कि नहीं। लेट्स हिट एंटर, ये तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। आपने फॉर्मूला एकदम सही बताया, लेकिन इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला चल रहा है,
बट ये काम नहीं करेगा मल्टीपल पे। ओके अब मैं आप लोगों को बताऊं कैसे काम करेगा। जी। और कोई ट्राई करना चाहता है? एनीवन वांट टू ट्राई? देखो वी लुकअप जो है इंडस्ट्री का सबसे 101% यूज करने वाला वी लुकअप है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक है, अगर ये आ गया तो आपका 50% जॉब फिक्स है। सर हमें आपका स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा? नहीं, सबको ब्लैक दिख रहा है। किसी को दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन? दिख रहा था सर, अभी मैं दोबारा फिर से से एक बार दिख रहा था सर। मैं फिर से दिख शेयर रहा कर रहा हूँ। ओके, नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? अब दिख रहा है Yes. सबको? यस 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 सर, यस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम वी लुकअप का कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेस्टेड वी लुकअप का मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ आपको क्या फर्स्ट करना होगा, पहले तो आपको पूरा का पूरा जहां तक डेटा चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट स्टेप यही है। ओके फर्स्ट स्टेप में यही करना है आपको, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे? वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिखने के बाद आपको जो फाइंड करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट सेल जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करने का है, राइट? नाउ वेयर यू वांट टू फाइंड फ्रॉम दिस डेटा। मैंने पूरा एंटायर डेटा सिलेक्ट कर लिया। ओके, डन है? क्लियर है? क्लियर है। अब इसको मैं फ्रीज कर देता हूं क्योंकि दिस डेटा इज नॉट मूविंग एनीवेयर, सो दैट्स व्हाई आई एम फ्रीजिंग दिस वन। ओके, नाउ यहाँ पे मैं कॉमा लगाया। तो राकेश जी जो आपने बताया था ऐसे ही बताया था कुछ, लेकिन आपने पूरा सेल सेलेक्ट नहीं किया था, और भी कुछ थी उसमें चीजें। इसमें आपको क्या यूज करना है? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके इस कर्ली ब्रैकेट में आप क्या पास करोगे? आप पास करोगे अपने इंडेक्स कॉलम के नंबर 4, 6, 2, 10, 12 और 8। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे, ओके राइट? और कॉमा और फॉल्स हम करेंगे किस लिए यूज? एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करेंगे, और देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सुन लो क्या करना है। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है? आप एंटर नहीं प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे क्या? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर दबा दो, वो भी काम करेगा। तो नाउ कैन यू सी दैट कि यहाँ पे मेरा काम कर रहा है डेटा कि नहीं कर रहा है? यहाँ तो मेरे पास कुछ और ही आ गया डेटा। दिस शुड बी वर्क। लेट्स ट्राई अगेन, देखते हैं, बट काम होना चाहिए यहाँ पे। ये ऐसे ही काम करता है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मे बी मैं कुछ मिस कर गया हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, सेल मैंने बॉब सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डेटा पूरा सिलेक्ट किया, राइट? नाउ आई हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट। नाउ यूज 4, 5, 4 and 6, then I have to use 10, 12 and then close the सर फ्रीज भी करना है। ओके, पहले पहले पास करके देखते हैं, पास होता है तो देन उसके बाद फ्रीज कर देंगे, राइट? फॉल्स मैंने यूज किया, चलो फॉल्स मैंने यूज कर लिया। नाउ क्लोज द ब्रैकेट देन हिट एंटर। ओके, किसी किसी में मेरा थोड़ा एडवांस एक्सेल है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज लाइक वेरी वेरी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो नाउ अगर आप 2016 यूज कर रहे हो या 2019 यूज कर रहे हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना होगा, राइट? मैं यहाँ पे एंटर किया तो ये सिंपली रन कर गया रो। ओके, सो यू कैन सी दैट कि मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया। ओके, करेक्ट है ये डेटा गलत है कहीं पे? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, ऐसा कुछ? चलो बॉब का देख लेते हैं। 69 है, 27 है, और फिर उसके बाद 2 में हमारा 20 है, और फिर उसके बाद 57 है, और 99 है। यस, क्वेश्चन किसी का है क्या? सर मेरा है, रघु बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज।
सर जब हमने टेबल सेलेक्ट किया था तो हमने हाँ, टेबल में हेडर्स के साथ लिया था, नेम से लेके टोटल तक। हाँ, हमने ऊपर का न्यूमेरिक नहीं लिया था, राइट? ये वन तो टू मैंने थ्री। आपको सिर्फ ये तो सिर्फ मैं आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताने के लिए लिखा है। हाँ, तो फिर जब हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, तो वो हम्म, जबकि हमने ऊपर इंडेक्स नंबर मतलब सीरियल नंबर इंडेक्स नंबर कुछ नहीं लिया था ना। मैंने कुछ भी नहीं लिया ऊपर का सीरियल नंबर, मैंने सिर्फ आपकी डेफिनेशन के लिए लिया है कि आपको पता चले कि मैं कौन सा कॉलम नंबर ले रहा हूँ। ये आपको सिर्फ बताने का तरीका है, मैं नहीं सिलेक्ट करा कुछ भी। तो फिर हम जब हम फॉर्मूला में 462 एंटर कर रहे हैं तो हाँ, वो हाँ, कहाँ से मतलब कैसे ले रहा है जबकि हमने वो इंडेक्स नंबर लिया ही नहीं। मतलब एक्चुअल में मेरा थॉट ये है, फरवरी मार्च मई जैन करके लेते हैं ना हम नॉर्मल वी लुकअप में टेबल हाँ, हेडर का जो भी हो। या टेबल फिर हेडर का हम नाम नहीं लेते हैं। हम मैं बताता हूँ फिर से, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको जो मैंने दे रखा है ना, इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, ये मैंने सिर्फ कॉलम का नंबर डिफाइन किया है, ठीक है। ओके So this is my first column, got it? This is my second column, B, C, D, E, F, G, H, yes, like that. We have a sequence here. अगर मैं इसी डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दूं, राइट, अगर मैं इस डेटा को यहाँ से पेस्ट कर दूं, सो राइट नाउ दिस इज मेरा ये पहला ही कॉलम होगा, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, ये मेरा पहला ही कॉलम होगा। ओके ठीक है, सबको समझ में आया? ये कहीं पे भी डेटा हो आपका, अगर कहीं से भी शुरू हो रहा है डेटा, नो मैटर्स वेयर यू आर स्टार्टिंग, बट आपका हमेशा डेटा याद रखना कि जो चीज आप फाइंड कर रहे हो उसके हमेशा राइट में वैल्यू होगी, तो ही ये फाइंड करके आपको वैल्यू देगा, राइट, अदरवाइज नहीं देगा। VLOOKUP always look for the leftmost value from your whatever you are just finding your leftmost। ये leftmost हमारा इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आपका जो leftmost ये वैल्यू डेटा है इसका, इसी का वैल्यू उठा के यहाँ से देगा, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब सर मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने कॉलम नंबर इसलिए दिया है ताकि हमें कभी भी जब आप कॉलम इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हो, कौन से कॉलम से पिक कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बॉब का मार्च का मुझे डेटा उठाना था, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं फाइंड करके डाल सकता हूँ। लेट मी शो यू। अगर मेरे को मार्च का डेटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, आप ही बताइए मुझे, आप ही मेरे को हेल्प कीजिए ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए VLOOKUP के बारे में। वी लुकअप ओके, डन है। देन बॉब बॉब, ओके, कॉमा ओके, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे हम, फिर हाँ, F4 ओके, डन है, कॉमा ओके, कॉलन कॉलम इंडेक्स, नो आई नीड सिंपल फॉर्मूला। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा डालूं यहाँ पे, मेरे को मार्च का डेटा निकालना है तो 1 2 3 4 मार्च के लिए 4, राइट 4 एंड देन उसके बाद मई के लिए 6 कॉमा नो नो नो, सिर्फ मार्च के लिए निकाल रहे हैं अभी हम लोग, कोई नेस्टेड VLOOKUP नहीं लगा रहे। देन फॉल्स एंड देन हिट एंटर, और हाँ राइट। तो यहाँ पे आपको देखो डेटा पूरा आ गया 69, सो दिस इज नाउ करेक्ट। 6 तो इतना आपको सिंपल समझ में आया ना पूरा डेटा VLOOKUP कैसे आता है, हाँ राइट। अब मैं yes इसीलिए मैंने जो नेस्टेड इफ बताया था वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने कैसे डिफाइन किया वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, मेरे को पहले क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करने का है, ठीक है। मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉलम इंडेक्स सब चीज डिफाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, राइट। मेरे को जहां तक डेटा चाहिए था, ओके। जी और इसके बाद मैं डालूंगा VLOOKUP। VLOOKUP क्या कर रहा हूँ मैं, बॉब, राइट। बॉब के बाद मैं यहाँ पे
एक पूरा का पूरा एरे सेलेक्ट करना है, तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूं। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पे जो आप एक साथ देना चाहते हो, मतलब कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर अगर एक साथ निकालना है या एक साथ वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट में जाके उसको कॉलम इंडेक्स नंबर को, जैसे कि 4 मार्च का हुआ, 6 मई का हुआ, ठीक है, 2 हमारा जैन का हुआ, सितंबर हमारा 10 का हुआ, 12 हमारा नवंबर का हुआ, 8 हमारा किसका हुआ, जुलाई का हुआ। इज दैट क्लियर? ये अब करली ब्रैकेट के साथ ही बंद कर रहे हैं ना सर? जी हाँ, जी हाँ, इसको हमें कर्ली ब्रैकेट के साथ ही बंद करना है। ओके ओके। ठीक है, और उसके बाद हम फिर एग्जैक्ट मैच के लिए क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज अ फॉल्स एंड देन वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंड देन हिट एंटर। सो यू कैन सी दैट कि मेरे पास पूरा का पूरा ऊपर वाला रो आ गया। अब इस रो में आप चाहो तो ओके, हम लोग फ्रीज करना भूल गए थे। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, राइट, ये हमारा डेटा नीचे मूव हो रहा था, तो हमें क्या भूल गए, फ्रीज करना भूल गए। तो हमें फ्रीज करना था। तो एक बार फिर से हमें फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लगाया, देन मॉप, then I have to select all data, then I have to freeze this one, and then curly bracket for 6, 2, 10, 12 and 8, and then I have to close the curly bracket, and then I have to use false, and then I have to close and then hit enter. Now you got the answer. Now just drag this. You got the all values for all your data. Got it? मैंने इतनी बार ट्राई कर, यस क्वेश्चन प्लीज। सर ये क्या रहता है, जैसे अभी आप बॉब का मार्च में जून सबका डेटा निकाले हैं, तो मैं हाँ ऐसा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो नेम है हमारे पास बॉब एरिक जेन करके जो भी है, अगर इन हाँ, सबको मैं कर्ली ब्रेसेस में डाल दूं और केवल मार्च का डेटा निकालें तो क्या आएगा? सॉरी, आई कुडंट गेट यू योर क्वेश्चन। आप फिर से एक बार रिपीट कर, आराम से बोलिए, आराम से प्लीज, थोड़ा सा। मैं ये कह रहा था कि जैसे जो मेरे पास मल्टीपल नेम्स हैं, इनको मल्टीपल मैं नेम्स है, कर्ली ओके। इनको मैं कर्ली ब्रेसेस में डाल नहीं मुझे नहीं, केवल मार्च। नो नो नो, दैट्स नॉट वर्क एक्चुअली। वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए हम मैच यूज कर सकते हैं, इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। और हमेशा याद रखना कि जब हम कॉलम इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हैं ना, जो मैंने डिफाइन किया है 4, 6, 10 जो भी वॉट, तो वो हमेशा नंबर्स में ही होना चाहिए। राइट, ये फॉर्मूला ही ऐसा बना हुआ है, हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते। आपको डालना है तो हमको मैच इंडेक्स फंक्शन से भी आप यही चीज सेम फाइंड कर सकते हो जो मैंने अभी फाइंड किया है। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे मैं बताऊंगा आपको। हमें यहाँ पे मैन्युअली टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा मैच फंक्शन लगा दूं तो ये मैच फंक्शन से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, यहाँ पे जो भी आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने मैन्युअली लिखा है, इसके जगह पे अगर मैं मैच फंक्शन लगा दूं तो ऑटोमेटिकली आएगा। बट उसके लिए मैच फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है उसमें, 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, -1 क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, सो आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूँ। सो दिस इज द टास्क फॉर, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा शीट। ओके, सो लेट मी जस्ट, बाकी हम जो कवर करेंगे नेक्स्ट, कॉनकैटिनेट, लेफ्ट, मिड, राइट, ये हमारे नेक्स्ट अपकमिंग फंक्शन होंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट duplicate this one. Okay, create a copy and download a copy.
So I'm just downloading this copy. So done for the today. आप लोग इसकी जितनी चाहो प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा. मैंने आज इतनी बार प्रैक्टिस की वी लुकअप की, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको वी लुकअप में कोई पीछे नहीं कर सकता. राइट. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी लुकअप. ओके. एंड day 6. Yeah, but today is a day 6 and then create a copy. So I'm just downloading this file and share to the drive. Let me, where is the drive? So आप लोगों के पास अटेंडेंस का सब कुछ पड़ा हुआ है, राइट? मैं इसको ड्राइव में डाल रहा हूँ. आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. मैं क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग नहीं सर, अटेंडेंस लिंक्स. ओके. अटेंडेंस लिंक अभी रुक जाइए 1 मिनट में आप लोगों को देता हूँ. दिस इज आवर डाउनलोडिंग. यस, जिसका क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं. ये सर रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगा? ये मेरे को शेयर नहीं हुआ. अच्छा, ओके. आपको रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगा? आप 1 मिनट दोगे, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिपेयर कर दूं. सो ये मैं भेज नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसमें. ये हम कल कवर करेंगे. सबको वी लुकअप क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आज? आप लोग Yes, कर sir. लोगे ना? कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो. यस सर. सो नई मैंने चीज वो आप लोगों को क्या वी लुकअप में आज क्या मिला सीखने को? नई चीज सर एक साथ कुछ जो मिला? पूरा जो सीखा हुआ है उनके लिए आज क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से वी लुकअप में ऐसा चीज आप लोगों ने देखा होगा या कुछ ऐसा किया है वी लुकअप में कि हमें फाइंड करना हो. यस. किसी ने सॉरी कोई कुछ बोल रहा है क्या? सो ये मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ क्वेश्चन. सो आप लोगों को सिंपल फाइंड करना है. ठीक है. आप चाहो एक एक करके पहले फाइंड करना और फिर नेस्टेड इफ करके एक यहाँ पे फाइंड करना चाहो तो आप लोग फाइंड कर सकते हो. डन है. दिस इज फॉर नेस्टेड इफ. आप नेस्टेड इफ चाहो तो यहाँ पे यूज नेस्टेड वी लुकअप, सॉरी, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वी लुकअप. मैं ये डाउनलोड कर देता हूँ फाइल. create export and then you have to create a copy and download a copy. So this is my VLOOKUP and save. Just download and move this to drive. So I hope कि आप सबके पास ड्राइव का एक्सेस होगा, राइट? अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज लेट अस नो. So we will provide you the access for the same. मेरे पास नहीं है सर. आपके पास ड्राइव का एक्सेस नहीं है? Could you please send me your email ID on this chat? आप भेज सकते हो क्या मेरे को? हाँ भेज रहा हूँ. सर ये अटेंडेंस शीट का लिंक मैंने किया है चैट बॉक्स में, कॉल में. ओके, मैसेज. थैंक यू अर्पित. अर्पित हमारा पूरा अटेंडेंस का ध्यान रखता है.
So I love that guy. So so just request you all, please kindly put your all your attendance here. So that's why we track and everything we will provide you. अगर किसी के पास नहीं है, so immediately just send me your email ID here. राकेश, आपके पास नहीं है, right? So आपको मैं ड्राइव का एक्सेस देता हूँ. So in this drive you can see that कि हमारे पास काफी ढेर सारी Excel sheets हैं already. So this is your email ID. You have the edit access, so you can just download it. So thank you guys, or see you tomorrow. Right? थैंक यू सर। Do the practice. और ये nested if जो Excel जिसको आता है वो nested if प्लीज ट्राई आप लोग करो. आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा. किसको जी किसको सर, पता, थैंक यू। किसको किसको मालूम था nested if के बारे में? nested VLOOKUP. नहीं सर, पता नहीं था, नहीं डिसीजन नहीं हुआ। ओके, ट्राई करो, यूज करना, ठीक है? ठीक है ओके, सर। डन गाइस, बाय. आपने शेयर नहीं किया है, वो जो आपने एक्सेल शीट डाउनलोड किया था, हाँ, वो आपने शेयर कहाँ पे किया सर? भाई ड्राइव में मैंने डाल दिया. ड्राइव में आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए. ओके ओके, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट. थैंक यू सर। इन लोगों को ऑपरेशन महादेव की वजह से दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में से दिक्कत प्रियंका बैठक के वक्त साबित करना था कि जो हमारे पैसा है वो इंडियन पे, भारतीय पहचान जो है उनकी देख के नहीं माना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों ऑपरेशन महादेव नाम नहीं हो सकता? क्यों ऑपरेशन हेलो, 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 क्लास खत्म हो गया सर? क्लास खत्म हो गया?
हेलो